Today we'll start chapter 6, thermodynamics. Now, thermo means energy and dynamics means you can say changes or transformations. So basically in this chapter we'll be studying about the various energy changes that take place during a chemical reaction. किसी भी एक chemical reaction के during what are the various changes that takes place, energy changes, either energy is absorbed or energy is released. Energy can be in various forms. It can be in the form of heat, it can be in the form of light, but here mostly we will be talking about in the form of heat. So during a chemical reaction, if energy is absorbed in the form of heat or work is done, these kind of changes will be studying in this chapter, that is thermodynamics, because its name states that the energy transformations or the energy changes that take place during a chemical reaction. In a chemical reaction, what kind of energy changes takes place? So we'll be doing that in this particular chapter. Now, before we start the chapter further, we should know some terms related to thermodynamics. Thermodynamics has its own terminology. There are some terms which are specific related to thermodynamics. So पहले हम उन terms के बारे में discuss करेंगे that what are those terms that will help you to understand this chapter well. So first of all we have a term system. Now suppose we take coal and we start burning it. We have not taken any container, you can say. Simply I have put some coal, like in a bonfire I have put some coal and burn it. If I burn it, what will happen? Energy will be released. आसपास की air जो है वो warm हो जाएगी, because आसपास की air में energy is released, है ना. So basically this coal जहाँ पर हमने coal को burn किया है, that is called as a system. उसको हम क्या बोलेंगे? System. जब हम लैब में कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तो हम किसी बीकर में, किसी कंटेनर में कोई भी केमिकल रिएक्शन कैरी आउट करते हैं. तो दैट कंटेनर, दैट बीकर, और इवन इफ इट इज़ नॉट अ फिजिकल सब्सटेंस, कोई कोल जहाँ उस पर्टिकुलर एरिया में पड़ा हुआ है, दैट पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड एज सिस्टम. बेसिकली इट इज़ दैट पार्ट विच इज़ अंडर कंसिडरेशन. पूरे यूनिवर्स का वो पार्ट जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं, जहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है एंड वी आर ऑब्जर्विंग दैट पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज सिस्टम. उसको हम कहते हैं सिस्टम. तो सिस्टम यू कैन से द पार्ट ऑफ यूनिवर्स which is under consideration. You know that it is universe. हमारे आसपास जो कुछ भी है, अगर हम पूरा इंक्लूड कर दे अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स, द स्पेस एक्सेट्रा, तो वी गेट यूनिवर्स. अब पूरे यूनिवर्स का वो कुछ छोटा सा पोर्शन जिसको हम केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग कंसिडर कर रहे हैं, that is basically called as the system. उसको हम क्या कहते हैं? System. So system is the part of the universe which is under consideration. Now if we burn the coal, what happens? The air surrounding the coal gets heated up because energy is released. So system के आसपास का वो space जो सिस्टम के साथ यू कैन से इंटरैक्ट करता है, बिकॉज अगर ये एनर्जी रिलीज कर रहा है तो वो एनर्जी रिलीज होकर कहाँ जाएगी? आसपास की एयर में.
Similarly, if we are doing a chemical reaction in a room, in a laboratory, so that beaker is a system, but that whole laboratory, that whole room is called as surrounding. तो मतलब सिस्टम के आसपास का वो स्पेस जो कि सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करता है बेसिकली, दैट इज कॉल्ड एज सराउंडिंग. उसको हम क्या कहेंगे? सराउंडिंग. सो द स्पेस अराउंड द सिस्टम which interacts with the system, जो कि सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करता है. इंटरैक्ट इन द वे दैट इफ एनर्जी इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम, एनर्जी विल मूव टू द सराउंडिंग. Similarly, in a chemical reaction, if system needs energy, how will it get the energy? It will get the energy from its surrounding. अपने आसपास से ही तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा. सो जब भी हम एक केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, दैट पार्ट in which reaction is taking place is the system, and the space around that system is called as the surrounding. उसको हम बोलते हैं surrounding. I hope this is clear that system and surroundings are the two main considerations of this chapter. Now सिस्टम, सपोज मैं बात कर रही थी, हमने लैब में एक बीकर रखा, बीकर में हम रिएक्शन कर रहे हैं. सो बेसिकली दैट बीकर इज आवर सिस्टम एंड द सिस्टम इंटरैक्ट्स विद द एयर प्रेजेंट इन दैट लेबोरेटरी. सो लेबोरेटरी बिकम्स द सराउंडिंग. Now laboratory is present in the school, or you can say the whole universe, or you can say on the earth. So basically system plus surrounding constitutes the universe. System and surrounding collectively form the universe. System and surrounding मिलकर क्या बन जाते हैं? यूनिवर्स बन जाते हैं. यूनिवर्स वो बड़ा एरिया हो गया, शायद उस पूरे एरिया से सिस्टम इंटरैक्ट ना करे, और उस यूनिवर्स का ही छोटा सा पोर्शन जिसे हम कंसिडर कर रहे हैं फॉर द रिएक्शन, दैट इज सिस्टम. उसी यूनिवर्स का बाकी का कुछ पोर्शन जो उस सिस्टम के साथ इंटरैक्ट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज सराउंडिंग. सो we will use this terminology in the complete chapter. So you must know that when we are saying system, so system means the beaker, the container, the bowl, the room in which reaction is taking place. And not room, the surrounding means the room, the lab, the air around, air surrounding that, which can interact with the system. This is about system, surrounding and universe. Types of systems. Systems are of basically three types. What are those three types of system? First of all, we have a system called open system. Now what is an open system? Suppose we have taken an open beaker and I have taken water here in the liquid form and I heat it. What will happen? Water जैसे जैसे heat up होगा उसका temperature बढ़ेगा and it will be converting into vapors. उस water की vapors बनेंगी, और वो क्योंकि beaker open है तो जो vapors हैं, water vapors हैं, they will go in the surroundings, air में चली जाएंगी आसपास. So now here this water vapor, वो क्या है? मैटर है ना. वाटर वेपर हो गया, कोई भी लिक्विड हो गया, कोई रिएक्टेंट हो गया, दैट इज मैटर एक्चुअली. सो व्हाट हैपन्स? मैटर हैज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग. वाटर लिक्विड था, रिएक्टेंट था, यू कैन से इन दिस सिस्टम, एंड जब हमने हीट किया तो वाटर वेपर बनकर गैस बन गया, उड़ गया और आसपास सराउंडिंग्स में चला गया. तो मैटर सिस्टम से निकलकर कहाँ चला गया? सराउंडिंग में चला गया.
सेकेंडली वी आर गिविंग हीट टू दिस, वो हीट इस बीकर के थ्रू वाटर तक पहुंच गई, तो हीट सिस्टम के बाहर से सिस्टम के अंदर जो कंटेंट पड़ा है वहाँ तक ट्रांसफ़र हो गई। तो मतलब यहाँ पर मैटर का एक्सचेंज भी पॉसिबल है और एनर्जी का एक्सचेंज भी पॉसिबल है बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। जैसे हमने डिस्कस किया कि सिस्टम में से वाटर वेपर बाहर चला गया इन द सराउंडिंग एंड सराउंडिंग से हीट अंदर चली गई इन द वाटर। सो बेसिकली यहाँ पर मैटर का एक्सचेंज भी पॉसिबल है बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, मैटर कैन बी एक्सचेंज। आप कोई और रिएक्टेंट बाहर से ऐड हो सकता है, एयर ऐड हो सकती है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है ना, तो बाहर से मैटर अंदर जा सकता है सिस्टम के अंदर का मैटर बाहर सराउंडिंग में जा सकता है, तो मतलब मैटर का एक्सचेंज पॉसिबल है। सेकेंडली एनर्जी का एक्सचेंज भी पॉसिबल है, बाहर से हीट एनर्जी सिस्टम के अंदर जा सकती है और सिस्टम की कुछ हीट एनर्जी बाहर सराउंडिंग में भी ट्रांसफ़र हो सकती है। सो हियर द ट्रांसफ़र ऑफ मैटर as well as energy takes place, such a system is called as open system. So basically what is an open system? In which exchange of matter as well as energy can take place, जहाँ पर मैटर का एक्सचेंज भी पॉसिबल है, एनर्जी का एक्सचेंज भी पॉसिबल है, दैट इज कॉल्ड एज एन ओपन सिस्टम। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ सिस्टम वी हैव इज द क्लोज्ड सिस्टम। एज द नेम सजेस्ट, सपोज we have taken a container with lid over it. Now this container has a lid. So now if I take water here and I heat this water, so what will happen? Now water vapors will be formed, but वो वाटर वेपर्स लिड के कॉन्टैक्ट में आकर कंडेंस होकर वापस लिक्विड बनकर फिर दोबारा कंटेनर में ही चली जाएंगी। मीन्स नाउ दीज वाटर वेपर विच वी कॉल्ड एज मैटर कांट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिस्टम टू द सराउंडिंग। अब वो मैटर सिस्टम से सराउंडिंग्स में ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, बिकॉज नाउ द सिस्टम हैज़ अ लिड and it has some physical boundaries. चारों तरफ उसके एक फिजिकल बाउंड्रीज हैं जिसकी वजह से मैटर का एक्सचेंज नहीं हो पा रहा बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। बाहर से कुछ भी अंदर नहीं जा पा रहा, अंदर से कुछ भी बाहर नहीं जा पा रहा, इफ वी टॉक अबाउट द मैटर। सो द एक्सचेंज ऑफ मैटर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस, बट we are heating the container and because इसकी walls conducting walls हैं, तो heat इन walls के through water तक पहुंच रही है, और अगर हम थोड़ी देर इसको बाहर रख देंगे तो water वापस ठंडा भी हो जाएगा, कूल डाउन भी हो जाएगा, क्योंकि heat बाहर भी निकल जाएगी। तो heat मतलब सराउंडिंग से सिस्टम में भी ट्रांसफ़र हो रही है और सिस्टम से सराउंडिंग में भी ट्रांसफ़र हो रही है। Now in that case matter exchange is not possible but energy exchange is possible. मैटर का एक्सचेंज, यहाँ पर मैटर का एक्सचेंज भी पॉसिबल था, एनर्जी का भी। इन द क्लोज सिस्टम मैटर का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, बट द एनर्जी एक्सचेंज कैन बी पॉसिबल। एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है बिटवीन द सिस्टम एंड द surrounding. Such a system is called as closed system. So closed system in which exchange of energy can take place, but exchange of matter
is not possible. You can say the system in which energy can be transferred between system and surrounding, but matter can't be transferred between system and surrounding. Such a system is called as the closed system. Isolated system. Suppose we have a thermos flask जिसमें चाय रखते हैं, गर्म करने के लिए चाय या whatever दूध रखते हैं. तो थर्मल जो हमारा थर्मस फ्लास्क होता है, अब क्या होता है उसमें से, या जो हमारी जैसे मिल्टन की बॉटल होती है जिसमें पानी ठंडा है तो ठंडा ही रहता है, गर्म है तो गर्म ही रहता है. सो नाउ इट हैज़ इंसुलेटिंग वॉल्स. इसकी वॉल्स कैसी होती हैं? थर्मली इंसुलेटिंग. थर्मली इंसुलेटिंग वॉल्स मतलब यहाँ से एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो सकता. ये वॉल्स हीट को कंडक्ट नहीं करती, यानी ये वॉल्स हीट को ना तो अंदर से बाहर जाने देती हैं ना बाहर से अंदर जाने देती है. एंड इट हैज़ अ लिड, वी हैव क्लोज्ड इट. सो नाउ वाटर वेपर या कोई भी वेपर्स बाहर नहीं आ सकती, मतलब मैटर का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स. एंड इवन एनर्जी का एक्सचेंज भी पॉसिबल नहीं है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, बिकॉज इट्स वॉल्स आर थर्मली इंसुलेटिंग, जो कि हीट को कंडक्ट नहीं करती, अपने में से हीट ट्रांसफ़र नहीं होने देती, जिसकी वजह से सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में मैटर तो एक्सचेंज नहीं हो पा रहा था, बट एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं हो पाई. सच अ सिस्टम इज कॉल्ड एज आइसोलेटेड सिस्टम. तो a system in which no exchange of matter and energy can take place between सिस्टम एंड सराउंडिंग. नाउ सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ना तो मैटर का एक्सचेंज पॉसिबल है ना ही एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल है. सच अ सिस्टम इज कॉल्ड एज आइसोलेटेड सिस्टम. नाउ these are the three types of system. After we come to the next terms of thermodynamics, that is first of all macroscopic properties. See, up to chapter 4 we were considering a molecule, an atom, एन इलेक्ट्रॉन. हम एक एक एटम की प्रॉपर्टीज़, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, उसका साइज़ क्या है, उसकी रेडियस क्या है, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी है, ये सब बात कर रहे थे. फिर हम एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे थे. Then we were discussing the microscopic properties, the atomic size, the force of attraction, atomic number, nuclear charge. These are all the microscopic properties because these are of the single substances and very, very small properties. But now we are taking the substances in bulk. We are taking a container having 10 milliliter of water or 20 milliliter of, you can say, benzene, etc. So now we are taking the matter, taking the substances in bulk, in large amount, and for that large amount we have some properties which can be used to determine the state of that substance. For example, हम बोलेंगे कि भाई इस कंटेनर में जो भी सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर कितना है, उसका प्रेशर कितना है, उसका मास कितना है, उसकी वॉल्यूम कितनी है, और सब प्रॉपर्टीज़. तो बेसिकली दीज आर कॉल्ड एज
मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क ऑफ अ सिस्टम। हम पूरे सिस्टम में जितने मर्जी मॉलिक्यूल्स हैं, जितने मर्जी एटम्स हैं, हम पूरे बल्क, पूरे कंप्लीट सिस्टम की बात कर रहे हैं, हैविंग ह्यूज नंबर ऑफ एटम्स, ह्यूज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन इट, एंड ऑल द एटम्स, ऑल द मॉलिक्यूल्स हैव सेम macroscopic properties. So these properties which are for the bulk which is present inside the system, that are called as the macroscopic properties. उस पूरे bulk को define करने के लिए जो properties को हम use करते हैं, these are called as macroscopic properties. Now these macroscopic properties are of two types. First is state function. Now what is a state function? Suppose we have this system A and the temperature of this system is suppose 298 Kelvin. Now I heat it, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ गया 300 Kelvin. Then I further heat it, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ गया 315 Kelvin, and then I cooled it so that इसका टेम्परेचर हो गया से 290 Kelvin. So अब उसके बाद मैंने कोई चेंज नहीं किया. We can say that this is the initial state of the system. Initial state means इस स्टेट मुझे बताना है कि मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें सपोज वाटर है, सो आई हैव टू डिफाइन समथिंग ना, दैट वाटर का टेम्परेचर 298 केल्विन है, 20 मिलीलीटर्स ऑफ वाटर है, प्रेशर 1 atm है. तो बेसिकली यही प्रॉपर्टीज़ हमारी स्टेट वेरिएबल्स हैं एक तरह से. नाउ दिस इज कॉल्ड इनिशियल स्टेट, मतलब उसकी स्टेट को डिफाइन करने के लिए आई यूज सम पैरामीटर्स. नाउ आई हीटेड इट, टेम्परेचर बढ़ गया, और हीट करा टेम्परेचर बढ़ गया, फिर कूल करा टेम्परेचर कम हो गया, एंड दिस इज कॉल्ड द फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम. नाउ मैं डायरेक्टली भी तो 298 केल्विन से टेम्परेचर को कूल करके, मतलब सिस्टम को कूल करके टेम्परेचर डायरेक्टली 298 से 290 केल्विन लेके जा सकती थी. तो चाहे मैं पहले यहाँ से हीट करके यहाँ पहुँची, फिर यहाँ पहुँची, फिर कूल किया यहाँ पहुँची, या फिर मैं डायरेक्टली यहाँ पहुँच गई, क्या टेम्परेचर पे कोई फ़र्क आया? वेदर आई एम गोइंग थ्रू दिस पाथ और आई एम गोइंग थ्रू दिस पाथ, टेम्परेचर ओनली डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल स्टेट and the final state of the system and not on the path which is being followed during that process. उस प्रोसेस के ड्यूरिंग क्या पाथ फॉलो हुआ कि हमने पहले टेम्परेचर 300 केल्विन बढ़ाया, फिर 31 केल्विन बढ़ाया, फिर कम किया अप टू 290 केल्विन, या मैंने डायरेक्टली 298 से 290 केल्विन डिक्रीज कर दिया. इट हार्डली मैटर्स. सो बेसिकली such properties which depends only on the initial state as well as the final state of the system and not on the path which is being followed are called as state functions. ऐसे functions को हम क्या बोलते हैं? state functions. किसी भी system को define करने वाले वो variables, functions बोलो, variables बोलो, properties बोलो, जो सिर्फ इनिशियल स्टेज एंड फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं एंड नॉट ऑन द पाथ, जो कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के ड्यूरिंग जो पाथ फॉलो हुआ उस पर डिपेंड नहीं करते. सच प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज स्टेट फंक्शंस. द प्रॉपर्टीज और द वेरिएबल्स विच डिपेंड ओनली on the initial and the final state of the system and not on the path which is followed during that, उस पर डिपेंड नहीं करती. These are called as the state functions. For example,
इंटरनल एनर्जी। अब आप वो सोचोगे इंटरनल एनर्जी क्या है, वो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, दैट व्हाट इज़ इंटरनल एनर्जी, व्हाट इज़ एंथैल्पी, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा, दीज आर ऑल स्टेट फंक्शंस। बट देयर आर सम प्रॉपर्टीज़ जो कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पे नहीं, जिस पाथ से इनिशियल और फाइनल स्टेट तक हम पहुँचे हैं, इनिशियल से फाइनल स्टेट पर हम पहुँचे हैं जिस पाथ से, उस पाथ पर भी डिपेंड करती हैं। दीज आर कॉल्ड एज द पाथ फंक्शंस। तो द प्रॉपर्टीज which depend on the path being followed during a reaction, उसको बोलते हैं हम पाथ फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल हीट, फॉर एग्जाम्पल वर्क, हीट हो गया, वर्क हो गया, दीज आर द पाथ फंक्शंस। ऑब्वियसली अगर मैं कोई रिएक्टेंट ए से रिएक्टेंट सी बना रही हूँ, अगर मैं डायरेक्टली ए से सी बना रही हूँ तो मे बी हीट कम रिलीज या एब्जॉर्ब हुई हो, वर्क डन कम हुआ हो। बट अगर मैं पहले ए से बी बना रही हूँ, बी से डी बना रही हूँ, फिर डी से फिर सी बना रही हूँ, तो ऑब्वियसली वर्क डन ज़्यादा होगा, मे बी एनर्जी रिक्वायर्ड भी ज़्यादा हुई होगी, है ना। सो हीट हो गया या वर्क हो गया, वो सिर्फ सिस्टम की इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड नहीं करते, वो पाथ पर भी डिपेंड करते हैं कि हम ए से सी तक कैसे पहुँचे। चाहे हम डायरेक्टली गए हैं या हमने इंटरमीडिएट स्टेट्स को फॉलो करके फिर गए हैं, तो दे डिपेंड अपॉन द पाथ विच इज़ बीइंग फॉलोड while reaching from initial state to the final state. Such functions are called as path functions. So mind it, heat and work are path functions because obviously अगर हम long path follow करके जा रहे हैं किसी रास्ते से, तो हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, हमारी एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी. So heat and work are the path functions. Now we can classify actually the microscopic properties into two और types. मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को हम दो और टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, दैट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. Those properties which depend on the mass or amount of substance present in a system. एक सिस्टम में कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या मास ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करती हैं. सच प्रॉपर्टीज़ आर कॉल्ड एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़. वो प्रॉपर्टीज़ जो किसी सिस्टम में कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करती है, मास पर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो सिस्टम में प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़. These properties are called as extensive properties. For example, mass, volume, surface area, internal energy, enthalpy, etc. These are all extensive properties. ये सारी properties क्या होती हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़. एक्चुअली ये डिपेंड करती हैं मास और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर. लेकिन कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि किसी कंटेनर में, किसी सिस्टम में कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट है, मास ऑफ सब्सटेंस कितना प्रेजेंट है उस पर डिपेंड नहीं करती. दीज आर कॉल्ड एज द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ विच डू नॉट डिपेंड on the amount or mass of substance
प्रेजेंट इन द सिस्टम, जो सिस्टम के अंदर मास या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना है उस पर डिपेंड नहीं करती, दीज आर कॉल्ड एज द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर, प्रेशर, मोलर वॉल्यूम एक्सेट्रा, दीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, क्योंकि वो मास या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि कंटेनर में प्रेजेंट है उस पर डिपेंड नहीं करती. दीज आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जाम्पल. देयर इज अ कंटेनर हैविंग अ गैस ए. कोई गैस ए इस कंटेनर में प्रेजेंट है, इसकी वॉल्यूम है V, प्रेशर है P, टेम्परेचर है T. प्रेशर पूरे कंटेनर का प्रेशर, वॉल्यूम पूरी वॉल्यूम का पूरे कंटेनर की वॉल्यूम, टेम्परेचर पूरे कंटेनर का टेम्परेचर जिसमें गैस प्रेजेंट है. नाउ मैंने इस कंटेनर में एक वॉल लगा दी बीच में. आई डिवाइडेड दिस कंटेनर इनटू 2 पार्ट्स. वही जो गैस थी उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बीच में एक वॉल लगा दी. नाउ व्हाट हैपन्स, टेम्परेचर दोनों का क्या होगा, अभी भी T ही होगा, प्रेशर भी दोनों का P ही होगा, क्योंकि वॉल्यूम हमने इक्वली डिवाइड करा है. तो मतलब इतनी वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स प्रेशर गैस के, इतनी वॉल्यूम में गैस के मॉलिक्यूल्स इक्वल है, सो दोनों साइड प्रेशर अभी भी P होगा. एंड बट वॉल्यूम यहाँ पर हो गई V/2, वॉल्यूम यहाँ पर भी कितनी हो गई V/2. सो व्हाट हैपन्स, टेम्परेचर जो है वो कंटेनर में कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था उस पर डिपेंड नहीं कर रहा था. प्रेशर भी एक तरह से कंटेनर में जितना अमाउंट था उस पर डिपेंड नहीं कर रहा था, बट वॉल्यूम जो है वो कंटेनर की अमाउंट पर डिपेंड कर रही है. सो वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जबकि टेम्परेचर क्या हो गया, इंटेंसिव प्रॉपर्टी.